बहुत बढ़िया। वाह, कितना आया? बहुत दम है। मैं देखा नहीं, आपने किया होगा रिकॉर्ड। हाँ, आज कंपटीशन वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। पार्थो था। बहुत अच्छा। बोल। आप दोनों अब आप करो गाना से, फिर काजल, फिर मैं। ओके, धीरे धीरे आए हैं डर खत्म हो हाँ, जाएगा। काकली मैम। हाँ, काकली मैम है। मैम आए हैं। ओके, रुक जरा, रुक, सिस्टम लगाने दे। हे अमर गुरु दक्षिणा, गुरु के জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ আমার গুরু দক্ষিণা। হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। হে আমার গুরু দক্ষিণা। ফুল তো হাজার ফুটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার পরশ না পায়। ফুল তো হাজার ফোটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার পরশ না পায়। তোমার আশিসে ধন্য হলাম, তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। হে আমার গুরু দক্ষিণা।
বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতার বাধা হলো দূর। বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতার বাধা হলো দূর। সবাকার পদ রেণু মাথায় নিলাম, সবাকার পদ রেণু মাথায় নিলাম, হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম। যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম, হে আমার গুরু দক্ষিণা, হে আমার গুরু দক্ষিণা, হে আমার গুরু দক্ষিণা। থ্যাংক ইউ। वाह बहुत बढ़िया भैया দারুন দারুন, কি গান চয়েস করেছে। पार्थदा पार्थदा एकदम सटीक समय पे सटीक गाना সঠিক গানা। ये actually मेरी लड़की ने बताया। সেপ্টেম্বর রিপিট করতে হবে, এটা কিন্তু হ্যাঁ? 5 সেপ্টেম্বর এর জন্য একদম রিজার্ভ। हाँ रिजर्व है, ये लॉक है। बहुत बढ़िया। और काकुली देव- मैम है? हाँ काकुली मैम है? কাকুলি ম্যাম হ্যাঁ, কাকুলি ম্যাম কেমন লাগলো नमस्कार, मैम? नमस्कार मैडम। हाँ अभी आएगा। अब आएगा, हाँ ठीक है। আমি হ্যাঁ, তো ma'am। আনপ্রেডিক্টেবল, কি করব কিছু ঠিক নেই, খালি ললিতকে ফোন করছি আর ললিত বলে বলে দিচ্ছে। ম্যাম প্রণাম। এবার সবাইকে একদম, ট্রেনিং একদম। একদিন ট্রেনিং হবে সব टीचर्स से। विजय मैम अभी रिकवर कर रही हैं, चोट लगी है ना, तो बोली नेक्स्ट टाइम विजय मैम भी रहेंगी। আচ্ছা কার কিসকে চোট লাগি? বিজয়া ম্যাম, বিজয়া ম্যাম আচ্ছা পড়ে গেছিল না রাস্তায়, ব্যথা আছে খুব লেগেছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফোন করব তো। কেমন লাগলো পার্থদা গান? খুব ভালো লেগেছে, বলছি তো ভীষণ ও আচ্ছা শুনতে পাসনি তো, খুবই ভালো লেগেছে। আর পার্থ এত ছুপা রুস্তাম, স্কুলে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতো, আমি সেটাই পুরো ভাবছিলাম। এখন তো সিঙ্গার, প্রো সিঙ্গার হয়ে গেছে। আর তোরা তো জানিস যে ও অত ভালো গান গায়, একটু তো ঠেলেও দিতে পারতিস আমার দিকে। 2-3 বছর লাগলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, তারপরে যখন খুললো একদম পুরো। খুব ভালো, খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর গান গেয়েছে। আর এই थैंक यू, এখনো थैंक यू, দেখ थैंक यू। কত সুন্দর গাইছে। काजल अब तुम चलो स्टार्ट हाँ करो, भैया। तुम्हारे बाद फिर मैं, काकुली फिर मैम को कंचन। प्रणाम, मैं काकुली मैम को करियो प्रणाम। একদম সবার অনেক আশীর্বাদ সবার জন্য। हाँ ভালো লাগবে। नमस्कार, मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। स्मृति। छोटे से कब हो गए बड़े, कैसे कहाँ हुए सवाल खड़े। छोटे से कब हो गए बड़े, कैसे कहाँ हुए सवाल खड़े। सोचती हूँ जब लगा कर ध्यान, याद आए दुर्गापुर के भी सीआरपीएफ का योगदान। सोचती हूँ जब लगा कर ध्यान, याद आए दुर्गापुर के भी सीआरपीएफ का योगदान। स्कूल के वो सुहाने दिन, स्कूल के वो सुहाने दिन, वही प्रार्थना दया कर दान। स्कूल के वो सुहाने दिन, वही प्रार्थना दया कर दान। क्या दिन थे वो, पढ़ाई के साथ योगा था, ड्राइंग था और था नाच गान। क्या दिन थे वो, पढ़ाई के साथ योगा था, ड्राइंग था और था नाच गान। मस्ती तो किया ही हमने, मस्ती तो किया ही हमने, अर्जित भी किया शिक्षकों से नित नए नए ज्ञान। मस्ती तो किया ही हमने, अर्जित भी किया शिक्षकों से नित नए नए ज्ञान। करती हूँ शत शत नमन, आप सभी शिक्षक हैं महान। करती हूँ
शत शत नमन, आप सभी शिक्षक हैं महान। धन्यवाद। निकाल लिया। अरे बहुत बढ़िया, छुपा रुस्तम। काजल बहुत बढ़िया, बहुत। काजल सब ललित भैया की कृपा है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया। चलो, খুব সুন্দর রে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ভালো, খুব ভালো। খুব ভালো লাগলো। কাজল কত बहुत ভালো बढ़िया। লাগে। আমি তো আজকে ওই টাইমটায় না আমি টিচার ছিলাম না, আমি স্টুডেন্টই ছিলাম। আমারও ভীষণ আমি নস্টালজিক হয়ে পড়ি ওই সিআরপিএফ দুর্গাপুরা তোদের কথা, তোদের মধ্যে থেকে থেকে। সত্যি সত্যি মনে হয় না আমি টিচার, আমার মনে হয় আমিও স্টুডেंट। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। अब रिकॉर्डिंग में सुनूंगा फिर Thank you, दोबारा से। ठीक है, सो मेरी बारी है। इट्स टीचर्स डे मीट 5th July, a bit surprising, unusual. However, the last few years have cleared one thing. Let's suppose I am going to die today, and if I have only one call to make, one thing to do, one initiative to take, one action to take, then who will I call, what would I do, and why am I waiting? So why to wait for 365 days when the 5th is coming back again and again after 30 days? So keeping this in mind, this Teachers Day meet we have organized, and it's planned, it will be a regular event, an opportunity for all of us to say and share what we always wanted to. Something to make our teachers feel proud and something to make them happier. So कविता वगैरह कुछ नहीं लिख पाया, बट एक स्कूल के टाइम की संस्कृत पोएट्री याद है, नीति श्लोका। तो वो मैं जो भी याद है उसको रिसाइट करना चाहूंगा। माननीय शिक्षका शिक्षके मम प्रिय सतीर्थाच अद्य अहं भवद्भ्य समीपे नीति श्लोकां आवृत्तिं करोमि। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, साधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन चानृतम्। अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वासो विश्वासिति, मूढ़चेता नराधम। दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्यालंकृतोऽपीशन, मणिना भूषितः सर्प, किमसौ न भयंकर। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वज्रएतादृशं मित्रं, विषकुंभं पयोमुख। षड दोषा पुरुषेनेह, हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं, आलस्यं दीर्घसूत्रता। प्रोनाउंसिएशन को माफ करेंगे, बस याद है, आई जस्ट ट्राइड इट, बस इतना ही। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। शांता मैम को जरूर सुनाइए। শান্তা ম্যাডাম খুব টাফ বললি একটা আজ কবিতা। শান্তা ম্যাডাম को होना चाहिए था, উনি থাকলে খুব খুশি হতেন। হ্যাঁ থাকলে আমি পাঠিয়ে দেবো ভিডিওটা, পাঠিয়েছিলাম মেসেজ। হ্যাঁ খুব সুন্দর বলেছিস, চলো। খুব সুন্দর कंचन, বলেছিস, এত কঠিন একটা हाँ। কবিতা। विल एंड विद कंचन। अब मेरी पारी। हाँ यस यस। ओके ओके लेकिन मैं अपनी कविता सुनाऊं उसके पहले कुछ दिखाऊंगी। ये मेरी एक डायरी है केंद्रीय विद्यालय के लाइफ की। इसे मुझे प्रदीप्ति ने दिया था और उसी के हाथ से लिखी हुई है ये चीज, और इतने वर्षों के बाद भी मैंने संभाल के रखा है। और इसी में मेरी पहली कविता जो मैंने लिखी है वो बताती। मैं डेट भी बताऊंगी और तो रिलेट करेंगे, खासतौर से ललित को याद होगा तो ललित उस चीज को ध्यान करेगी। कविता का शीर्षक है जख्म। और मैं बताऊं आपको कि ये कविता मैंने लिखी थी 5 जुलाई 1988, 5th जुलाई 1988 को। तो मेरी कविता सुने। शीर्षक है जख्म।
ओह क्यों बार बार मुझे छेड़ते हो, ओह क्यों बार बार मुझे छेड़ते हो। जिंदगी तू मुझे जानती है, जिंदगी तू मुझे जानती है, फिर क्यों कुरेदती है जख्म। ओह क्यों बार बार मुझे छेड़ते हो, जिंदगी तू मुझे जानती है, फिर क्यों कुरेदती है जख्म। बेबस दर्द टीसती है, बेबस दर्द टीसती है। आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं मजबूर हूँ, काश ऐसा ना होता। आज पूरे 3 महीने बाद एक बार फिर मुझे स्कूल आने का सौभाग्य मिला। आज पूरे 3 महीने बाद एक बार फिर मुझे स्कूल आने का सौभाग्य मिला। बड़ी शान से आई थी, मगर न जाने क्यों द्वार पर ठिठक गए कदम। बड़ी शान से आई थी, मगर न जाने क्यों द्वार पर ठिठक गए कदम। मैंने अपने लिबास पर नज़र डाली, मैंने अपने लिबास पर नज़र डाली। कितना फासला था आज, कितना फासला था आज। मैं एक अपरिचित अतिथि, मैं एक अपरिचित अतिथि और वो एक छात्रा थी। एक कदम फिर उठा और उठकर क्यों रुक गया। एक कदम फिर उठा और उठकर क्यों रुक गया। इन्हीं सीढ़ियों पर मैं भी कूदती फांदती आती थी और क्लास में जाती थी। इन्हीं सीढ़ियों पर मैं भी कूदती फांदती आती थी और क्लास में जाती थी। पसीने से लथपथ कमीज, पसीने से लथपथ कमीज मेरी चुस्ती के परिचायक थे। मेरी आव भाव गंभीरता भावनाओं के स्रोत, मेरी आव भाव गंभीरता भावनाओं के स्रोत। कल्पना के क्षितिज को छूती रुमानी कविता और जीवन यथार्थ। कल्पना के क्षितिज को छूती रुमानी कविता और जीवन यथार्थ। एक परिवार था मेरा, एक परिवार था मेरा केंद्रीय विद्यालय CRPF दुर्गापुर का। मेरे जीवन आदर्श, मेरे जीवन आदर्श, मेरा चरित्र, मेरी शीलता का प्रतिरूप थे मेरे शिक्षक। मेरे जीवन आदर्श, मेरी चरित्र, मेरी शीलता का प्रतिरूप थे मेरे शिक्षक। स्वप्न मेरा भासित था उनमें, स्वप्न मेरा भासित था उनमें। नृत्य कविता बहस, नृत्य कविता बहस, अनुशासन देशभक्ति के अभिमान में। नृत्य कविता बहस, अनुशासन देशभक्ति के अभिमान में। मैदान में खेलना दौड़ना चौराहों पर मेरी व्यस्तता थी। धूल मिट्टी पेड़ों पर छुपन छुपाई, धूल मिट्टी पेड़ों पर छुपन छुपाई। आम कितनी थी मैंने चुराई, मगर आज, आज सब कुछ लुट सा गया है। आज सब कुछ लुट सा गया है। न जाने क्यों किसने मुझसे मेरे 10 वर्ष छीन लिए। न जाने क्यों किसने मुझसे मेरे 10 वर्ष छीन लिए। मुझे जख्म दे गया ऐसा जो नहीं भरेगा कभी। मुझे जख्म दे गया ऐसा जो नहीं भरेगा कभी। निष्कलुष पारदर्शी बचपन, निष्कलुष पारदर्शी बचपन, बेफिक्री का समय। बस समय पेंडुलम की तरह डोलता है। निष्कलुष पारदर्शी बचपन, बेफिक्री का समय। बस समय
पेंडुलम की तरह डोलता है, समझदारी पायदान दर पायदान तोलता है। समय पेंडुलम की तरह डोलता है, समझदारी पायदान दर पायदान तोलता है, लेकिन जख्म कभी नहीं बढ़ता। जख्म कभी नहीं बढ़ता, बस कारवां बढ़ता चलता है, कारवां बढ़ता चलता है। और बचपन बचपन एग्जाम की कॉपी वाली लास्ट रफ पेज बन जाती है। बचपन एग्जाम की कॉपी वाली लास्ट रफ पेज बन जाती है, जहाँ से चुन लेते हैं हम कुछ स्मृतियाँ, जहाँ से चुन लेते हैं हम कुछ स्मृतियाँ ढूंढ कर कभी कभी, या फिर वो जीवन की कॉपी में, या फिर वो जीवन की कॉपी में स्मृति के रूप में नत्थी रह जाती है। बचपन एग्जाम की कॉपी वाली लास्ट रफ पेज बन जाती है, जहाँ से चुन लेते हैं हम कुछ स्मृतियाँ ढूंढ कर कभी कभी, या फिर वो जीवन की कॉपी में स्मृति के रूप में नत्थी रह जाती है मेरी तरह। ये मेरी एक और कविता है और इसे मैंने लिखा था 7 जुलाई 1988। 7 जुलाई 1988। कविता का शीर्षक है बीते लम्हे। आज पूरे 3 महीने 2 दिन बाद, आज पूरे 3 महीने 2 दिन बाद परमिंदर को देखा मैंने। लौट रही थी राशन लेकर, वह जीप में सवार था। आज पूरे 3 महीने 2 दिन बाद परमिंदर को देखा मैंने। लौट रही थी राशन लेकर, वह जीप में सवार था। जाने कितनी ही बातें रील के तरह चली, जाने कितनी ही बातें रील के तरह चली देखकर उसे। लौट आए फ्लैशबैक से स्कूल के वे बीते दिन। लौट आए फ्लैशबैक से स्कूल के वे बीते दिन। हंसा मन जब स्कूल के प्रांगण में सिर्फ एक पुस्तक के लिए झगड़ पड़ी थी उससे। हंसा मन जब स्कूल के प्रांगण में सिर्फ एक पुस्तक के लिए झगड़ पड़ी थी उससे। बगल से गुजरती कार की हॉर्न बजी, संभली मैं। बगल से गुजरती कार की हॉर्न बजी, संभली मैं। साइकिल पर ध्यान बांधा और तभी पास से गुजर गई स्कूल बस। तभी पास से गुजर गई स्कूल बस, कुरेदती मन। Those were the golden days. Those were the golden days. शायद इसे ही कहा गया है। दोस्ती की महक, गुरुओं के आशीष। दोस्ती की महक, गुरुओं के आशीष। प्रार्थना और प्रतियोगिताएं हाउस की। दोस्ती की महक, गुरुओं की आशीष। प्रार्थना और प्रतियोगिताएं हाउस की। सब कुछ मुझे खींचे जा रही है, सब कुछ मुझे खींचे जा रही है, और मैं तेज तेज साइकिल चला रही हूँ, तेज तेज साइकिल चला रही हूँ। पढ़ते लड़ते वक्त कहाँ कुछ पता चलता है, पढ़ते लड़ते वक्त कहाँ कुछ पता चलता है। मुझे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होने में भी अंतर नहीं लगा कभी। पढ़ते लड़ते वक्त कहाँ कुछ पता चलता है। मुझे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होने में भी अंतर नहीं लगा कभी। हमारे लिए नंबर कभी कांटा बना नहीं, हमारे लिए नंबर कभी कांटा बना नहीं। बस उतना ही था, बस उतना ही था जितना लड़के लड़कियों के बीच होता है।
बस उतना ही था जितना लड़के लड़कियों के बीच होता है। अनकहा संकोच, अनकहा संकोच, शर्मीली हिचक। हमारी क्लास थोड़े ही ना इससे अलग थी, हमारी क्लास थोड़े ही ना इससे अलग थी, लेकिन केवी भी हमारी कड़क थी, लेकिन केवी भी हमारी कड़क थी। गुलदस्ते सा सजाए रखा हमें, गुलदस्ते सा सजाए रखा हमें। लड़का लड़की के फर्क का, लड़का लड़की के फर्क का बीच बना ही नहीं नासूर कभी। दोस्ती दवा बनी, दोस्त दवा बने, ताकत बने। दोस्ती हिम्मत, दोस्त दवा बने, ताकत बने। दोस्त हिम्मत। केवी की गढ़ी है मिट्टी हमारी, केवी की गढ़ी है मिट्टी हमारी, आकार हमारा। हम मिलेंगे दोस्त वहीं फिर, हम मिलेंगे दोस्त वहीं फिर। असेंबली में पेड़ की छांव तले, हम मिलेंगे दोस्त वहीं फिर। असेंबली में पेड़ की छांव तले। म्यूजिक मैडम के हारमोनियम, म्यूजिक मैडम के हारमोनियम और मेरे कमांड के साथ। म्यूजिक मैडम के हारमोनियम और मेरे कमांड के साथ। सावधान विश्राम। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। तो पुरानी कविता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे मंच पे मुझे सुनाना पड़ेगा। ये मैं किसी को आज तक किसी को नहीं सुनाया। स्कूल की कविता दीदी मुझे सुना चुकी हो। हाँ, मतलब मुझे जब मैं छोटी थी तब मुझे सुनाती थी। वाह। तो एक दिन 5 जुलाई को रिजल्ट जानने के लिए केंद्रीय विद्यालय गई थी, तो पहली कविता उस दिन लिखी है। और 2 दिन बाद अमरावती गई थी राशन लेने के लिए। तो लौटते वक्त जीप में परमिंदर जा रहा था, वो दिखा। तो परमिंदर को पता भी नहीं होगा कि वो मेरी कविता में है। ऐसे ही म्यूजिक मैडम, नायक सर, उपाध्याय सर मेरी कविताओं में है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। कविताएं कभी मैंने छापी भी नहीं, छपवाई भी नहीं। अब देखते हैं, आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो स्कूल के तरफ से सब लोग का मिला के छाप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल छपेगी। और इसमें ना भूमिका सभी टीचर्स को बोलूंगी आशीर्वाद के रूप में लिखें। तो उन्हें हमारी जरूरत कैसे नहीं होगी, है ना? और हमें भी उनकी बहुत जरूरत होती। रोल रिवर्सल। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं सोचती हूँ कि ललित ने पूरी जिंदगी में क्या किया नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसा कर दिया जो शायद थैंक यू सो मच। क्या कहीं नहीं, मैं एकदम तटस्थ बात कर रही हूँ, फेवर नहीं कर रही हूँ आपका। मैं भी टीचर हूँ और मैं जानती हूँ कि एक स्टूडेंट जब प्यार से सामने आता है या उसकी आंखों में जब आती है ना वो चीज समझ में आती, और वो चीज आपको इतना एनर्जेटिक करती है कि आपके सामने दुखों का पहाड़ आ जाए, मुसीबतों के समंदर आ जाए, आप पार कर ले एकदम। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टीचर्स अस, जैसे बच्चे माँ के लिए होते हैं। और वाइस वर्सा, कोई बहुत दुख होता है, परेशानी होती है, आज भी याद है कि नायक सर कैसे क्या अरे बहुत हंसी आ गई कि कभी अरे मुझे किसी ने पहली बार प्रेम पत्र में डायरी में प्रेम की याद लिखी थी और मैंने कितना बवाल किया था, और नायक सर ने कैसे मुझे संभाल लिया। मैं मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर इन चीजों को लिखूंगी। ये चीजें इंस्पिरेशन है। एक टीचर कैसे सारी परिस्थितियों को नियंत्रित करता है और बच्चा भटक ना जाए, इसलिए मैंने लिखा। लड़का लड़की का जो एज होता है 9-10 में, इट इज डेंजरस एज, लेकिन हमें कभी कोई ऐसी घटना याद ही नहीं है कि कभी हम लोगों के बीच ऐसा कुछ हुआ या हमारे टीचर्स ने हमें ऐसा प्रोवोक किया
डांस में भी साथ रखते थे, गाने में भी साथ रखते थे। मतलब वो फीलिंग जो है ना वो पैदा होने नहीं दी उन्होंने। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, पेरेंट्स से भी ज्यादा टीचर्स संभालते हैं इस समय। ये मैंने अपनी बिल्कुल। लाइफ में एकदम मुझे रिजवी सर की भी एक घटना याद है इसी तरह की, ये प्रेम प्रसंग वाली। तो कैसे उन्होंने संभाला था चीजों को, वो चीजें मैं कभी नहीं भूलती। चूंकि मैं पढ़ाती भी हूँ ऐसा विषय भी, इंडियन लिटरेचर पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, दर्शन पढ़ाती हूँ, तो बहुत फील होता है कि व्हाट आवर टीचर्स आर। बिल्कुल। वैसे टीचर मिलना ना बहुत लक की बात है। अभी पता नहीं केवी में आप कैसे टीचर्स होते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर्स को क्या बोलते हैं रिसाइकिल करते जा सकती ना, तो मैं इन्हीं टीचर्स को हमेशा देती और अपने बच्चे भी इन्हीं से पढ़वाती। मेरी बहुत मन में रहती है एकदम। मैं इसमें मतलब नॉस्टैल्जिक हूँ कि आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज अपनी नौकरी छोड़ करके मैं फिर 10 साल अपने टीचर्स से पढ़ना चाहती। क्या बात। बहुत बहुत है वो चीज है, दे आर यूनिक पीसेस। तो आप वैसे टीचर्स मैंने अभी भी नहीं, हम लोगों में भी वो चीजें कहाँ आई। थोड़ा कुछ आशीर्वाद मिल गया हो तो अलग बात। वी वर वेरी लकी पर्सन। और मुझे लगता है केवी सीआरपीएफ दुर्गापुर ये तो स्पेशल था, बहुत स्पेशल। हाँ। उस टाइम में प्रोफेशनल वो चीजें नहीं होती थी ना अपने। वो आती थी कि चाहे क्लास के बाद संडे भी बुला लेते थे हेमरम सर, वो नोट्स लिखवाने जाओ। और एक मुझे याद है, एक दुबली पतली सी मैडम थी, एक जगदीश नाम का एक बहुत बदमाश लड़का था, उसको उन्होंने सुधार दिया था। हाँ, निशा था उसका। तो बहुत इन चीजों को हम लोग इस धरती पे बहुत लकी जन्मे हैं। हाँ, करंजय मैडम, यस शी इज राइट। मैम आई थी कुछ दिन के लिए। कौन मैडम? मंजू मैम आई थी कुछ दिनों के लिए, साइंस कुछ पढ़ाना है कि शायद इसमें एडॉप्ट पे। हाँ, ठीक। तो बहुत याद आती है चीजें। तो मेरे लिए तो ये जीवन दान है, क्योंकि मैं जितनी अकेले जगह पे रहती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि कोई घर तक, दरवाजे तक इस पूरे कैंपस में कोई किसी के दरवाजे नहीं जाता। पता नहीं ये शायद यूनिवर्सिटी कल्चर है या क्या। मुझे तो धीरे धीरे इतनी परेशानी, मतलब थोड़ी वितृष्णा होने लगी। कॉलेज कल्चर में जब थी तो सभी कॉलेज एक दूसरे के पास हम लोग जाते थे कालिम्पोंग। हो सकता है बंगाल का प्रभाव हो। यहाँ तो कोई नहीं आता, परिंदा भी पर नहीं मारता जिसको कहते हैं ना, एकदम नहीं। तो यही है। बहुत बढ़िया। बट मेरे यहाँ जब चहल पहल, मैंने कोरोना जब नहीं था तो मेरे घर में मेरे स्टूडेंट्स आ बस। तो कैंपस में मशहूर है कि उस मैडम के यहाँ जाना है जिनके यहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं। आप इतना बोलोगे तो सब मेरे घर ले आएंगे। यही है। आज मैडम को मेरे ख्याल से मैंने बहुत, आज मुकुल भैया नहीं आए, वो बोले कोई मीटिंग है कहीं पे, आएंगे अगली नेक्स्ट वाले में आएंगे। नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट मंथ 5th अगस्त। वो कविता कंप्लीट नहीं हुआ होगा भैया का शायद। नहीं, उन्होंने बोला था, मुझे बोला था कि मूड बनाना पड़ेगा। मैं बोला मूड तो चाय पी के बनाओ, गांजा पी के बनाओ, या जैसे बनाओ, मूड तो बन जाता है। तो बोले थोड़ा। आप विश्वास कीजिए कि आपने करीब 1 महीना का टाइम दिया और मैंने एक पंक्ति नहीं लिखी है। ये मेरी पुरानी है कविता, मैं पुरानी। से इसमें तो आप थोड़ा हल्का भी पड़ गया है, तो फिर इसको मैंने इस पे लिख करके पढ़ा। तो मैंने पूछा रोज मुझे, तुम जरूर लिखो भैया, तुमको तुम्हारा इंतजार करेंगे। नहीं लिख पा रहे। फिर उसको मैंने कहा कि मैं पुरानी वाली सुनाऊं। तो मेरा जो फर्स्ट श्रोता होती थी ना मेरे जीवन में, तो काजल होती थी। मैं अच्छा इसके लिखने का टाइम भैया इसीलिए थोड़ा बहुत 15 मिनट रात में 2:15 पे लिखा है मैंने।
तो हम्म, लिखने के बाद मैं काजल को उठाती, ए काजल सुन सुन फर्स्ट लिखना वो होगी, और सेकंड स्कूल में आने के बाद प्रदीप्ति, हम दोनों ऐसे अच्छा। करके डेस्क में उसको मैं सुनाती थी कविता। बहुत हम्म, अच्छी अच्छी लगी आज तो, मैडम को देख करके बहुत बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा मैडम। बहुत लंबे। काकुली मैम, आप बोलो कुछ, लेट्स क्लोज इट। मैं तो सुन रही हूँ ना टीचर्स डे के, टीचर्स को बारे में, टीचर से क्या मिला है, क्या एंजॉय किए हैं तुम लोग, वही मैं सुन रही हूँ, तुम लोग को एक्सपीरियंस और तुम्हारा भावना उस समय का मैं सोच रही हूँ। ये क्या बोलना था, एक भूल गए, देखो क्या बोलना था। अच्छा, उन दोनों को जो शंख जो बजाया ना दोनों, और सुन नहीं पाएंगे उन दोनों को, हम्म, पार्थो का हाँ जो दो बच्चे जो हाँ है। शंख बजाए थे, सांख बजाए थे, हाँ हाँ अभी भी कोई बजाया, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। बजा नहीं ये सकेगा और कोई, बजाओ क्यों ना, कितना फिर सुंदर बजाना है? सा। हाँ, पार्थोदा, इधर आ हाँ जा, शुभमय को। बजा। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आया, साउंड आवाज नहीं नहीं है, आया। कट गया। शोना जाए रुको नहीं, रुको, शोना जाए नहीं, शुभमय। एक मिनट। दम बहुत है इसमें। बहुत लंबा। इतना इस उम्र में तो होनी भी चाहिए, इस उम्र में हम्म, होनी भी चाहिए। अब मैं तो सोच रही थी ना, एक दिन ना वो कैंडल जलाने वाला करते हैं, एक तीस लेकर के कैंडल जलाओ। अब टाइम है सोचने के लिए, 1 महीना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। We have, एक मिनट रोक। हाँ हाँ, हाँ। और हम लोग 5 सितंबर को ना 2 स्लॉट, पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि जूम में टाइम ज्यादा नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो सही। आवाज ना बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जैसे सॉन्ग शुरू कर रहे हैं तो हम्म, नो साउंड। हाँ, वो स्टार्टिंग में ही सुनाई दे रहा है मैम, शायद हाई वॉल्यूम के कारण से नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग ही सुनाई दिया और नहीं। हम्म। पार्थोदा, आपको सुनाई दे रहा है? पार्थो तो बगल में ही है, उनको तो सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा भैया। नहीं आया? ना। हाँ नहीं, सिर्फ रुक स्टार्टिंग जरा, आया भैया, उसके बाद नहीं आई आवाज। रुक। चलो। वो वाला सॉन्ग यार। ललित, रिकॉर्डिंग वाला मैडम को भेज देना। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसको मैं एडिट सही हाँ से हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग वाला भेज दो। 2 मिनट रिकॉर्डिंग रुक। कर देंगे उसको। और उसको भी बोलो ना, मुकुंद भैया के बेटे को, उसको भी बोलो एक बार बजाएगा। हाँ फिर हाँ वही उसको एंट्री करना होगा, फिर देखता हूँ बजाने के लिए। कर दो, क्योंकि वो उसका बहुत क्लियर सुनाई दिया था, हाँ, क्लियर उसका था। नेटवर्क बहुत अच्छा है। हाँ उधर रख, 2 मिनट रुक। हम्म, उसको पे- पार्थो तो उसको खड़े होके बजाने बोलिए ना, थोड़ा डिस्टेंस में अच्छे से आएगी आवाज। हेलो वैभव, हाँ एक बार एंड कर देते शंख बजा के। शंख शंख एंड करना है। नहीं नहीं, लॉग इन करके और एक शंख बन जाके क्लोज कर देते बस। ठीक। एंट्री ले। हाँ, ले रहा है। दिया। मेरा इसमें एंट्री ले। रुक जरा, साउंड आ रहा है? हाँ, आपका तो आ रहा है साउंड। शुभमय का आ रहा है साउंड। ना? हाँ, हाँ रुक, अभी तक चालू नहीं किया उसको।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शुभमय, कीप इट अप। अभी शुभमय को एक दो बार और बजाना पड़ेगा, मोने राखबे। अब तो ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है, सितंबर शंख खरीदना पड़ेगा। नहीं, और कोमल और कौन वो लोग भी है ना बजाने के लिए नेक्स्ट टाइम। काजल बता रही थी। सारे शंख बजाने हाँ। वालों से प्रोग्राम शुरू करेंगे 5 सितंबर को। हाँ, शंख से ही करेंगे। हाँ, कोमल और भाई का कहना है कि हम ज्यादा ना बजा पाए, लेकिन शौक है बजाने का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब तो खरीदना पड़ेगा शंख। वहाँ पे तो जाके देखना, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें एक आवाज आती है टक टक करके, आपको उसमें भारी आवाज आती होगी। अरे शंख ऐसा ही है छोटा सा। ये शंख में भी प्रॉब्लम है बहुत, आता नहीं है मेरे को सुबह बजाना में ये। से सीक्रेट टिप्स ले लेंगे सुबह से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। वैभव आ गया शंख बजाने के लिए, ये भी आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। वो थ्रिलिंग साउंड आता है ना, इसलिए वो डिस्टॉर्टेड सब आता है। मैं एडिटिंग में सही सब- कर दूंगा मैं उसको ना। सब ट्राई करके देख लिया तेरा। Actually साउंड देना। हाँ, অ্যাকচুয়ালি যারা গান টান গায় তারা খুব ভালো শঙ্খ বাজায়, কেননা তাদের গলাটা সবসময় রেডি থাকে, গলাটা সবসময় তাদের রেডি থাকে। হ্যাঁ, গান গাওয়ার জন্য যেন শঙ্খটা ভালো বাজাতে পারে তারা। আর এই যে ওর যে ভেঙে যাচ্ছে বা কিছু হচ্ছে না, তার মানে ওর গলাটা এখন রেডি নেই আর কি, এই জন্য ও বাজাতে পারছে না, ওর বাজনাটা ঠিক মতো আসছে না। ওর গলাটাও ভালো শঙ্খ বাজানোর জন্য, যে স্পেশালি গান যারা গায় তাদের যদি গলাটা সবসময় রেডি তো ওই জন্য गान इसलिए गाना शंख लोग अच्छा बजाते हैं। और बाकी जो बजाते हैं गला ठीक रहेगा तो तब बजेगा। इनका गला तो का जो ये बजाया उसका गला भी एकदम तैयार है इस मोमेंट में। अभी काल परसों ऐसा नहीं है, इस मोमेंट में उसका गला एकदम ठीक था, इसलिए आवाज ठीक से आया, इसका नहीं आ रहा है। okay. So thank you so much काकली मैम, Thank you, पार्थिता, भैया। काजल, कंचन, थैंक यू सब वैभव, सुपमय, सब कोई। ভালো লাগলো সবাইকে আজকে 5 Catch सितंबर up ज्वाइन soon. की काकली मैम को बहुत बहुत थैंक यू। 5 सितंबर में सारे हमारा पुराना बच्चों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये लिया हाँ। तुम लोग अटेम्प्ट लिया, अच्छा लगा मुझे। अभी फिर आपको दिखाएंगे सबको। चलो थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है। मच। ओके, चल चलो चलो ओके ओके। बाय।